ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਆ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਅਪਰਨਾ ਜਾਦਵ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਪਾਏ ਭੰਗੜੇ। ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚੇਅਰ ਦੱਸ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਚੁਣਾਵੀ ਵੀਡੀਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। US ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਖੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਾਰਨੀਵਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਫਰੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਬਰ ਹੋਏ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏ। ਤੋ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਂਡ BSP ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੁਰਾਣਾ
ਗੱਠਜੋੜ 66 ਹੋਇਆ ਸੀ, 96 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ ਈਡੀਨੀਆ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਆ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਪਾਲੇਕਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। आप सब लोगों को नमस्कार। गोवा के सभी लोगों को जो कि आज मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। वैसे तो आज का ये कार्यक्रम किसी बड़े मैदान में होना चाहिए था, रैली के तौर पे होना चाहिए था, पर हम सब लोग कोरोना की मार से जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है। इसी वजह से हम पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आज ये कार्यक्रम एक छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि संदेश पूरे गोवा नहीं पूरे देश में आज चला जाएगा। आज का दिन गोवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, नई राजनीति के लिए। जैसा अभी अतिशी जी ने बोला, गोवा वांट्स चेंज। गोवा के लोग तंग आ गए हैं मौजूदा पार्टियों से, मौजूदा नेताओं से। ऑप्शंस ही नहीं है उनके पास। वही नेता हैं, कुछ नेता हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी पॉलिटिक्स के अंदर। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। सत्ता में आते हैं तो पैसा कमाते हैं खूब, और फिर उस पैसे से सत्ता में दोबारा आते हैं। इसे बदलना है। गोवा बदलाव चाह रहा है। अभी तक गोवा के पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब गोवा के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर आई। उन्होंने दिल्ली में शानदार काम किए। मुझे बड़ी खुशी होती है गोवा के, मैं इस दौरान कोने कोने में गया हूँ। कहीं कोने में चले जाइए, किसी भी गरीब से गरीब आदमी से गोवा के कोने में बात कर लीजिए, वो भी कहेगा हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, बिजली फ्री कर दी। ये 3 चीजें तो, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, ये 3 चीजें तो मुझे लगता है गोवा के कोने कोने में हर आदमी तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने अच्छा काम किया एंड गोवा वांट्स चेंज। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े। आम गोवा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे इस बार।
और गोवा का जो सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, वो भी एक नया चेहरा होगा। हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हों, चाहे वो इधर रहते हों, नॉर्थ गोवा के हों, चाहे साउथ गोवा के हों, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हों, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीज़ों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा। उस शख्स ने अभी तक अपनी जिंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। ही विल बी एन ऑनेस्ट मैन। एक और बात है, अभी तक गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है, सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता है 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहां पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया। फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इन्होंने 2 मिनट ये पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं। उन्होंने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगा दी गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की।
मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में सीएम चेहरा नहीं मिल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को सीएम बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू अमित। अमित जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये मानती हूँ कि गोवा को भी बहुत बहुत बधाई कि अमित जी जैसा पढ़ा लिखा, ईमानदार, सामाजिक कार्यकर्ता इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये गोवा की राजनीति में भी नया इतिहास शुरू हो। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਪਰਨਾ ਯਾਦਵ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਅਪਰਨਾ ਯਾਦਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਖਨਊ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀਟ ਅਪਰਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ लड़ चुकी है। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी। और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का। और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं।
मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। मेरा आदरणीय अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधन करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में ज्यादा सवाल आए तो प्रचंड बहुमत की फिर से भाजपा सरकार बनेगी। मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि हम पीछे से निकल जाते ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਰੰਟਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ, ਆਸਾਨ ਪੈਸੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। डिसबैंडमेंट ऑफ दी ठेकेदारी सिस्टम। ठेकेदारी सिस्टम जड़ तो पटना पैना है। तेलंगाना ने जो ठेकेदारी सिस्टम के नाल पहले साल रेत माइनिंग की सी और उन्होंने अवार्ड मिलया, दे वर दी बेस्ट अमंगस्ट द रेस्ट इन दी होल कंट्री। ठेकेदारी सिस्टम के नाल उन्होंने 10 करोड़ रुपए कमाए। जदों बैन की ठेकेदारी तो अगले 3 साल 2400 करोड़ रुपए कमाए। यही शराब के ठेके केजरीवाल चला रहा है। 75-25 इत्थे चलते रहे है। L1 के लाइसेंस कि रिकॉर्ड कढ़ लो, अगे बंदा कोई है तो पिछे बंदा कोई चला रहा। रेत उदों पंजाब के लोगों के लिए सुविधाजनक होएगी जदों ये ठेकेदारी सिस्टम नूं डिसबैंड करके ये स्टेट का रिसोर्स है, गवर्नर दी ओहदे च लिखिया इट इज़ द रिसोर्स ऑफ दी पंजाब गवर्नमेंट। ये साडा रतन है। ठेकेदारी सिस्टम नूं डिसबैंड करके स्टेट की जदों कॉरपोरेशन बनी और सारा रेता स्टेट के अंडर लिया गया, स्टॉक यार्ड बनाए गए और उन्होंने स्टॉक यार्ड चों कड्ढण वाले ट्रक अड रंग दे ते जिहड़े स्टॉक यार्ड तो ऑनलाइन रेते की बुकिंग के उत्ते छड्ड के आने वाले अड रंग दे। देयर इज नथिंग कॉल्ड दी सैंड माइनिंग माफिया, इट इज दी ट्रांसपोर्ट माफिया। रेत चुकनी पैंदी है, टिपरां च पाउणी पैंदी है, सड़कां भन्नी तुरी जांदे आ, ना रेट है ना डेट है ना वेट है। जिहड़े ट्रकां दे कोलों पर्ची पुछ लो, वो पर्चियां पुरानियां रखी फिरदे आ। जिहड़े पठानकोटों आउंदे आ, वो पठानकोट वाले ट्रकां दे गुंडा टैक्स लैंदे आ, उही माइनिंग माफिया। जे वो 25,000 नूं लिआउंदे आ ट्रक, 5,000 उन्हां तो गुंडा टैक्स लैके 20,000 फिर बचत हुंदी है उन्हां नूं। पंजाब मॉडल ये कहता जिहड़ा बंदा बाहरों पठानकोटों रेता लैके आऊगा और पंजाब की धरती ते एंटर करूगा, एंट्री पॉइंट के उत्ते GST देगा। ये GST के प्रव्यू तो बाहर है, लेकिन असी GST ला के स्टेट नूं अमीर करांगे। घट तो घट नहीं साल का 300-400 करोड़ रुपया तो उत्थों आएगा ते 2 तो 3,000 करोड़ रुपया रेत की प्राइस फिक्स करके आएगा। कदे देखिया रेत की प्राइस फिक्सड? पंजाब पिछले 25 साल तो माफिया राज कर रहे हैं। किसी ने रेत की प्राइस फिक्स की है? टूथपेस्ट विक सकती है बिना प्राइस फिक्स किए? दारू विकी है कदे बिना प्राइस फिक्स किए? फिर रेत क्यों विकती है? स्पैसीफिकली इस करके विकती है भी सप्लाई रोक दो तो 4,500 की बेचो, 6,000 की बेचो, 10,000 की बेचो, 12,000 की बेचो, 20,000 की बेचो। पर एक सुपने वांग लगदा कि एक सुपना ये सुपने वाली गल ही कोई नहीं। ये तो हकीकत, ये तो हकीकत कन्वर्ट करने लिए ठेकेदारी सिस्टम डिसबैंड करो, जिवें तेलंगाना ने किया, जिवें आंध्र प्रदेश ने किया, जिवें बंगाल ने किया। एजे किन्ने स्टेट ने, हरियाणे ने किया, सारे ने किया। समझ लो मेरी गल। जिन्हें चोर मोरी करनी है वो ठेकेदार ला के अगे, किसी का कुक लगा तो किसी का कुछ लगा तो किसी का कुछ लगा, तो पिछे कौन खड़ा है थोनू पता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर सारे दुनिया में पता है। इस करके जदों तुसी रेत की प्राइस फिक्स करोगे और मैं पॉलिसी लेके आया सी, उसे दिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा और रेता एक रेट के उत्ते विक जाएगा। लेकिन जब तक ठेकेदारी सिस्टम है, तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लो, जिन्हें ठेका लै लिया वो कहेगा थोड़े प्यो का राज है, मैं जेडे मैं रेट पर बेचनी है मैं बेचांगा। इसे करके रेता 3,500 भी विकदा, 4,500 भी विकदा। गल नूं समझ लो।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਚੋਂ ਅੱਡ ਰੰਗ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਡ ਰੰਗ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਡ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਅੱਡ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 25,000 ਦੇ ਰੇਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰੱਕ ਗਵਾਉਣਾ ਪਊ, ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਊ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ 4,000 ਨੂੰ 3,000 ਨੂੰ ਤੇ 5,000 ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੇਤਾ 1,200 1,300 1,400 ਵਿਕੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ 1,500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਪਾਏ ਭੰਗੜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਾ ਲੈ ਕਦੀ ਲਾਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਸਰਾ ਮਨਾ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੋਇਆ ਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਦੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੋੜਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੋੜਾ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਤਲੀ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਟਦੇ ਗਏ ਚੱਕਦੇ ਫਟੇ तो सारे साथी कोई सारे लोग उठा जाओ, हरमन मनी सारे लोग उठा जाओ। आम आदमी पार्टी भगवंत मान साडा अपनी जित दर्ज होगी, असल जित ता है। सो थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। आलो जी हेलो हेलो हाँ जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विद्या बालन ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚੇਅਰ ਦੱਸ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਚੁਣਾਵੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ। Oh
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਦਿਲਬਰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਐਕਟਰੈਸ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟਰੈਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ कराएगी। और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाधि पेंशन से जोड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की। उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है मुसर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहां के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवाज से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। उसी समय जिलाधिकारी ने उन परिवारों को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। इसी तरह कुशीनगर के जिलाधिकारी थे, जब उनको ये सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे अब बजट थोड़ा कम है, अगर जिले को बजट ज्यादा मिल जाएगा तो इस तरह के मुसर जाति के और तमाम ऐसे परिवार हैं उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। तो उसी समय फैसला लेकर के बजट बढ़ा करके उन परिवारों को भी जोड़ने का काम किया। जिस समय मैं बुंदेलखंड में समाजवादी पैकेट को बांटने गया और मैं एक बहुत पुराना स्थान है जैन धर्म का देवगढ़ वहां गया, वहां जब मैंने देखा जंगल के बीच में ट्राइबल लोग, जनजाति लोग परिवार रह रहा था, पूरा गांव था, उन्हें पता कि मैं वहां से गुजर रहा हूं तो जो कुछ उनके पास था उससे वो स्वागत करने आए थे। जो वो अपनी ढपली बजा रहे थे वो भी फटी थी। जो वो फूल लेकर के आए थे वो कनेर के फूल और जंगल के फूल लेकर के आए थे, उससे माला बनाई थी। और जब मैंने उनके घरों को देखा कि वो पॉलिथीन या टीन में रह रहे हैं और घर भी पूरा नहीं बना है, उसी समय जिलाधिकारी क्योंकि साथ थे, मैंने कहा कि इस गांव को पूरा का पूरा लोही आवाज दे दिया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे जानकारी मिली जब मैं पिछली बार अभी ललितपुर गया था कि पूरा का पूरा गांव लोही आवाज से बन चुका है। सभी को उस समय उस योजना से जोड़ा गया और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन देने का भी काम हुआ था। इसी तरह लखनऊ मोहल्ला लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे और उन सपेरों को जगह ले ली गई थी आवास विकास के माध्यम से। उन सपेरे परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी थी, लोहिया आवास के साथ साथ उन्हें समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम होना शुरू हो गया था। मुझे याद है कि कन्नौज में बड़ी संख्या में मुझे अक्सर हमारे कार्यक्रम में सपेरे मिलते थे, सपेरे समाज के लोग मिलते थे। और पता नहीं क्यों सपेरे समाज के लोगों से हम समाजवादियों का लगाव रहा है।
वो हो सकता है इसलिए भी कि जो हमारी पहचान थी, अगर हम किताबें पढ़ें, पुरानी पढ़ें, तो जो राइटर्स थे जो भारत आए, उन्होंने जहां जहां भारत को किस रूप में लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्नेक चार्मर्स की देश है। तो उसी समय फैसला लिया था कि एक्सप्रेसवे के किनारे एक स्नेक चार्मर्स विलेज बनाया जाएगा। उस समय जमीन चिन्हित हो गई थी, जमीन नहीं ले पाए थे, लेकिन समाजवादी पेंशन दे दी गई थी उन परिवारों को, लोही आवाज भी दिया गया था। लेकिन पुणे जब सरकार बनेगी तो एक्सप्रेसवे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बनेगा। साथ ही साथ ऐसे परिवार जो ऐसे गरीब, जिनकी जातियों के नाम पे ही गरीबी दिखाई देती है, जात के आधार पे ही बहुत गरीब है, उन परिवारों को 100% समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। एक बार फिर मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं और दोबारा कहता हूं कि समाजवादी पेंशन योजना शुरू होगी। इस बार 6,000 साल नहीं मिलेगा, इस बार 18,000 रुपए साल मिलेगा। और मैं अपने ऑपरेटरों से कहूंगा कि अगर पुराना एड उन्हें मिल गया हो, क्योंकि प्रेस में उस एड से शुरू करना चाहता था, वो एड जरूर चलाएं और उसके बाद प्रेस। साल के 6,000 और महीने के 500, ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 400 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, जहाँ से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया, ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। इस एड के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहता था कि सबसे ज्यादा अकाउंट अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में खुलवाए थे तो समाजवादी सरकार ने, साथ ही साथ सबसे ज्यादा ब्रांचेस बैंकों की अगर किसी ने खुलवाई थी तो समाजवादी सरकार में, और सबसे पहले सबसे ज्यादा डीबीटी सिस्टम से अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ है। लेकिन झूठों से कैसे मुकाबला करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। और दूसरा अहम सवाल है, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं आपके परिवार की, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिया, केशव मौर्य ने नेताजी का नाम दिया बाकायदा। तो ये आपके परिवार में सेधमारी की बात, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल, क्या टिकट आप नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। और वो भी बता दें कि वो भी किसी के टच में है। ये देख, मैंने अगर रोका ना होता
अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है, जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है। और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में तो हमारे भी उधर टच में है। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना, एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए आप, गाय मां भूखी हैं और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। अभी टच वाली बात चल रही है कौन किसके टच में है। ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से नहीं वो ठीक है, ठीक बात है जो आप कह रहे हो। मैं समझ गया बात को, मैं बात समझ गया, लेकिन यहां मत कहिए ये बात। नहीं यहां मत कहिए। कौन विधायक? नहीं वो तो अरे अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप शुरुआती दौर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लेती रही। बुक्खल नवाब को ले लिया, बुक्खल नवाब को ले लिया। एक लखनऊ शहर के बिल्डर को नक्शे पे डरा करके ले लिया। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? नहीं पेमेंट के लिए बच नहीं है, पेमेंट के लिए। वहां कहां बुक्कल नवाब जेल जा रहे थे बताइए? उसके बाद वो लड्डू खा रहे थे, सिमैया खिलवा रहे थे सबको। तो ये पता नहीं कि बुक्कल नवाब कब वापस आ जाए। देखिए मैं समाजवादी पार्टी में, और आपको जानकर के खुशी होगी और आप इस बात को जानते हैं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। और कभी कंफ्यूज मत होना मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में। जो मिलिट्री स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, सैनिक स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फंड सेंटर के भी मिलते हैं। मिलिट्री स्कूल में बचपन से लेकर के मैंने 7 साल गुजारे हैं। आज भी पूरे देश की सीमा उठा करके देख लीजिए, कहीं न कहीं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ ऑफिसर वहां पर लगा खड़ा मिलेगा आपको। हमारे साथ के वो लोग हैं जो सीमा पर आज भी खड़े हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें कमांड किया। जब स्कूल में थे हम, तो हम लोगों को कमांड करते थे। वो हमारे स्कूल कैप्टन हुआ करते थे। वो प्रेसिडेंट के एडीसी रहे हैं और 2 बार रहे एडीसी प्रेसिडेंट के नारायणन जी जो थे उनके एडीसी 2 बार रहे वो। और दुर्भाग्य यह है कि जब राष्ट्रपति भवन से वो हटे, वो इतने अच्छे अधिकारी थे कि उन्होंने मुकाबला किया आतंकवादियों को, वो शहीद हुए। जब मैं मिलिट्री स्कूल गया तो उनकी याद में वहां चीजें रखी गई और आज वहां पर उनके याद में प्रतिमा लगी है धौलपुर मिलिट्री स्कूल में। एक और हमारे सीनियर थे। जब मैं स्कूल में गया तो जो उस समय जो कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन, वो सॉर्ड ऑफ ऑनर उन्होंने लीड किए आरडीसी की परेड। आज दुनिया के अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र के थे, कन्नौज के रहने वाले थे।
एडीसी टू प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला उन्होंने आरडीसी की परेड को लीड किया और एडीसी रहे राष्ट्रपति के। आज अमेरिका के बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और कन्नौज के थे। मैं तमाम एग्जांपल बता सकता हूं। समाजवादियों को और मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बताए, उनके साथ का पढ़ा हुआ एक ऑफिसर हो आर्मी में तो बता दे हमें। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में, फिर मैं दोहराता हूं, एक भी उनका क्लासमेट अगर आर्मी में रहा हो तो बता दे हमें, ऑफिसर रहा हो तो बता दो। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप तय करो कि राष्ट्रवाद का रूप क्या हो। जिस सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया हो, एक्सप्रेसवे बना करके एयरफोर्स के साथ टाई अप किया हो और उस टाई अप के तहत आपके मिराज सुकोई हवाई जहाज उतरे हों एक्सप्रेसवे पे, बताओ उत्तर प्रदेश के आप पत्रकार हो, सबसे पहले डिजाइन्ड अगर हाईवे किसी ने किया जिसमें मिराज और सुकोई उतरे हों और हरकुलस उतरे हों तो वो समाजवादी सरकार के थे। और समाजवादी सरकार ने अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिरे न डिजाइन किया होता तो प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से उतर नहीं सकते थे उस एक्सप्रेसवे पर। समाजवादियों की देन है कि कम से कम उनका विजन ये था, क्लियर विजन था कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसमें ऐसा रनवे हो जिसमें फाइटर उतर सकें, एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो उतर सकें। और उसका परिणाम ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब उतरे वो समाजवादियों की डिजाइन्ड एक्सप्रेसवे था, क्योंकि वो हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को पता था कि जो उनके साथ है उसने डिजाइन नहीं की है, ये काम चोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें सजा देने के लिए पैदल पैदल चलाया था। अगली बार हम भी दोहे, कविताएं, शेर, शायरी इसी तरह पढ़ा करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारी मशीन न रुके। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके टच में हो तो चुपचाप आप मुझसे मिल लेना। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पुड़िया निकल सकती है तुम्हारी सीट पर, हालांकि ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहां नहीं निकलेगी। नहीं, ये सीट वाले लोग नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि वो किसान आंदोलन में रहे लगातार, अच्छा ठीक, बुलवा देते हैं, आप बोले दे दीजिए, एक बार उन्हें बोलने दो ना, तब तो और बन बना लो। अरे विकेट नहीं गिरा रहे, अभी विकेट और गिरा सकते हैं हम। नहीं, बैठिए बेटा, आप अगर भानु प्रताप जी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है। हमें कोई सीट नहीं चाहिए, ये स्पष्ट रूप से हमने माननीय अखिलेश यादव जी से कहा है, क्योंकि लड़ाई देश को बचाने की है। देश बहुत संकट में है और अगर इस समय बीजेपी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका गया तो देश में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। उसके लिए हम समाजवादी पार्टी और विशेषकर माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम उनको इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरे चुनाव में लगातार प्रचार करेंगे ताकि बीजेपी को पूरी तरह से धराशायी किया जा सके। तो हर किसी को ये स्पष्ट होना चाहिए। हमारे विषय में आप जानते हैं, किसान आंदोलन में हम रहे हैं, सीएनआरसी के आंदोलन में लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है, आगे भी ऐसा ही करेंगे। बाकी माननीय अध्यक्ष जी जो जिम्मेदारी गठबंधन के रूप में हमें देंगे उसका पूरी ताकत से निर्वाह करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय राम जी भी बोल दें आप, क्योंकि उन्होंने हमारे पत्रकार साथी ने याद दिला दी सब बातें। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने 2 शब्द कहने का मौका दिया। सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, डॉक्टर लोहिया जी को नमन करते हुए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, दलित विरोधी काम कर रही है, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है, जो बाबा साहब के बदौलत हमको आरक्षण और संविधान मिला था उसको खत्म कर रही है। इसलिए मैं सरकार को छोड़ करके और भाजपा को छोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं अपने संत शिरोमणि रविदास महासभा की तरफ से, दलित समाज की तरफ से, कि आपकी सरकार बनेगी, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा और बाबा साहब सुरक्षित रहेंगे, संत शिरोमणि गुरु रविदास सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये योजना 100% महिलाओं के लिए है, माताओं के लिए है। आने वाले समय में जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत सारी योजनाएं ऐसी होंगी जो सीधे सीधे महिलाओं से, माताओं से, बहनों से और बेटियों से जुड़ी हुई योजना होंगी। तो बेटी, बहन और माँ के लिए योजनाएं लेकर के समाजवादी पार्टी आएगी मैनिफेस्टो के तहत। और बहुत सारे आप में से लोग जानते होंगे कि सबसे अच्छी स्कीम 1090 अगर किसी ने शुरू की थी तो वो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी। उसको आज खत्म कर दिया गया है, बजट नहीं दिया जा रहा है, चौपट कर दिया गया है। वो ऐसी योजना थी जो हमारी बहनों और माताओं की मदद करती थी। अरे भाई, मैंने हमारे पत्रकार साथी, मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। UBS ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ UBS ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ UBS ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਲਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਮੈਥਿਊ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 204 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। US ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਖੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। US ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਫਹੀਮ ਯੂਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 90% ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। कितना ज्यादा जरूरी है? जी, वैक्सीन्स 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में बहुत फ़ायदेमंद हैं। 90% रिड्यूस करती हैं ये कोविड डेथ्स को, इससे भी ज़्यादा इन सम केसेस। और बड़ों में या बच्चों में मेरा ख्याल है वैक्सीन्स सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कौन सी क्वालिटी, कौन सी कंपनी की वैक्सीन, उस बहस में पड़ने की बजाय आज भी मैं लोगों को कहता हूँ कि जो वैक्सीन अवेलेबल है आप वो लगवा लीजिए।
कोई भी वैक्सीन ना लगवाने से बहुत बेहतर है, और बच्चे हों या बड़े हों, सबको जरूरी है। Sir, booster dose. Sir, if I talk about the booster dose, as you earlier you tweeted also, how important it is, and what is the role of booster dose in preventing from this particular transmission? It prevents from the severity, or it prevents transmission as well, sir? Right. So when you drink a glass of water in the morning, you drink another glass in the afternoon, you drink another glass at night, right? That one glass is not enough. It's not going to last you for months. And when you drink that second or third glass, no one says, why are you drinking water again? We all understand, right? So similarly, our immune system cannot last forever on one shot. It needs repeated reminders, boosters. This is nothing unusual. Other vaccines also require repeated doses. So that's why it's important. If people had their vaccine 6, 8, 10, 12 months ago, that's like having a glass of water last week. You need more. So that is why, first of all, I don't think it's a scam by the pharma industry, as some people would like to say. I think it's need of the hour. Now, as far as how much transmission, it reduces death by 90%. How much it reduces transmission is still debatable. A lot of data is still coming, and I think it will vary. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ +1 +2 ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੈਲੀਬਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆਰਟ ਦੀ ਤਾਂ, ਬਟ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ MP ਜਾਂ MLA ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ MP ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।